جو ہے جلیل عباس صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ دورہ ہے یہ کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے اور اس دورے میں بہت امپورٹنٹ چیزوں پہ نظر ثانی کی گئی ہے؟ جی اپنا کلاسٹر صاحب یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے مڈل ایسٹ کے یہ جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے قطر ہو، چاہے یو اے ای ہو، ان کے ساتھ ہمارے بڑے ہی قریبی تعلقات ہیں، اور یہ جو صدر ٹرمپ کا دورہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دورے کے اندر کئی تجارتی معاملات پہ معاہدے ہوں گے، ڈیفنس کے معاملات پہ معاہدے ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اوور آل خطے کی صورتحال کے اوپر بھی ڈسکشن لازمی ہوئی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اور ہندوستان کے درمیان جو موجودہ جو ٹینشن ہوئی ہے وہ بھی زیر جو ہے بحث آئی ہوگی دوروں میں، اور چونکہ ہمارے ان کے ساتھ بڑا ہی اچھے تعلقات ہیں تو وہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے قطر ہو، چاہے یو اے ای ہو، انہوں نے پاکستان کے بارے میں اچھی ہی بات کی ہوگی۔ اور ایز اٹ از ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کا جو پاکستان کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ بہت ہی مثبت ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، سیکرٹری روبیو نے بہت ہی اہم رول پلے کیا اس پوری، ایک تو انہوں نے ایک امپارشیلٹی شو کی، انہوں نے نیوٹرلٹی شو کی، ان کے بہت اچھے بڑے قریبی تعلقات تھے ہندوستان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بیلنس رکھا دونوں ممالک کے درمیان، اور یہ کہا بڑے ہی واضح الفاظ میں کہ ان کے دونوں ممالک پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عربیہ نے اور باقی جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، قطر بھی ہو گیا، یو اے ای بھی ہو گیا، ترکیہ بھی ہو گیا، اور ان ممالک نے بھی پاکستان کی کافی ایک بڑی سپورٹ کی۔ چائنا تو خیر ہے ہی، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ چائنا تو پاکستان کے ساتھ اس کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور یہ چائنیز اکوپمنٹ جو تھا ہمارے پاس اور ہماری جوائنٹ پروٹیکشن تھی JF-17 اور باقی جو جہاز تھے، اور انہی کی وجہ سے ہم نے ہندوستان کو اس دفعہ جو ہوئی ہے ایک ٹینشن، اور جو ہمارا جو ایک دفاعی لحاظ سے ایکسچینج ہوا ہے، اس میں ہم نے ان کو بہت ہی سخت شکست فاش دی۔ ٹرمپ صاحب نے کل بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے، اگین جو ان کی شخصیت کا حصہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں، آنیسٹ، بلنٹ اور اسٹریٹ بات کرتے ہیں۔ کل انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے لیڈرشپ جو ہیں تو ان کو ڈنر پہ جانا چاہیے۔ مارکو روبیو صاحب کو بھی کہا، انہوں نے کہا آپ ان کا کوئی ارینج کریں، مطلب ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جسٹ اٹ واز اے لائٹ ایک کامنٹ تھا جو انہوں نے کیا، یا واقعی وہ اس پہ کام کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں؟ مطلب ڈنر سے مراد ہے کہ ملاقات کروائیں، کہیں نہ کہیں پہ ان کے لیڈران کی ملاقات ہونی چاہیے۔ آپ اس کو کتنا سیریس دیکھتے ہیں سر؟ میرا خیال میں یہ تو ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک بڑی ہی مخلصانہ قسم کی سوچ ہے، ان کی سوچ کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہیں جو معاملات طے ہو جائیں۔ کشمیر کی بھی انہوں نے بات کی کہ کشمیر کا مسئلہ بھی طے ہو جائے، اور اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، اور اپنے بین الاقوامی قوانین کے مطابق، UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کے مطابق اور کشمیری امنگوں کے مطابق، تو اس کے بعد تو ہمارے مسئلے مسائل کافی حد تک وہ حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ پانی کا مسئلہ بھی کشمیر کے مسئلے کے ساتھ لنک ہے، پھر سیاچن کا مسئلہ ہو گیا، وہ بھی اپنا حل طلب ہے۔ آلدو فارمر پرائم منسٹر، لیٹ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور جو فارمر لیٹ انڈین پرائم منسٹر تھے راجیو گاندھی، ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا سیاچن گلیشیئر کے اوپر 1989 میں، جو کہ فارملائز بھی ہوا تھا، اور وہ بھی اپنا حل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سر کریک کا معاملہ ہے، پانی کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے عوام بھی اپنے قریب آ جائیں۔ اب تو ہم ہمسایہ ممالک ہیں، اور ہندوستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کی لیڈرشپ بیٹھ سکتی ہے، اس میں میرا خیال میں کوئی بلکہ اچھی بات ہے کہ بیٹھ کے بیٹھیں اور کھانا کھائیں، اور ان تمام جو مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں، اور یہ اس بات کا بھی اعادہ کریں کہ دونوں ممالک کے درمیان آئندہ کوئی اس قسم کی تلخی پیدا نہ ہو۔
माजी में सर हमने देखा है कि जैसे आपने अभी बेनजीर भुट्टो साहब और राजीव गांधी साहब जब आए थे, इस्लामाबाद आए थे 89 में, आपने उनका जिक्र किया। फिर यहाँ पे वाजपेयी साहब आए थे बस सर्विस पे, मेरा ख्याल 99 में आए थे जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। फिर मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब के दरमियान कंपोजिट डायलॉग 2004 में शुरू हुआ, ये भी आगरा गए। और फिर हमने सुना उसके बाद भी यहाँ पे नवाज शरीफ साहब न्यू दिल्ली गए, यहाँ पे फिर ये हमने देखा मोदी साहब जो हैं वो यहाँ रेमंड आए थे। फिर हमने देखा कि जनाब बाजवा साहब के दौर में बड़ी सीरियस मूव्स हुई थी दुबई के हवाले से, वो भी फार्मूला सामने आया था कि कोई ना कोई हम बैठ के इन मामलात को हल करें, जो हमारे बैकडोर चैनल चल रहे थे मेरा ख्याल 2019-2020 में। सर आप क्योंकि इतनी बड़ी हाई पोजीशंस पे रहे हैं, वन ऑफ द टॉप डिप्लोमेट्स हैं, बड़ी आपकी रेपुटेशन है, आपकी इज़्ज़त की जाती है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी, आप क्या समझते हैं कोई 4 दफ़ा हम बड़े करीब हैं, कौन सा ऐसा फार्मूला है इन 3-4 को लेके, अगेन बेनजीर भुट्टो साहब से लेके फिर ये नवाज शरीफ साहब, फिर जनरल मुशर्रफ साहब, फिर जनरल बाजवा साहब का लेटेस्ट जो था, कौन सा डूएबल वर्कबल हो सकता है? क्योंकि दोनों साइड्स इन पे ऑलमोस्ट 19-20 वो राजी थी, आपने सारी चीज़ें देखी होंगी बड़े करीब से, आपको क्या लगता है कि अभी भी कौन सा ऐसा ये फार्मूला ये काबिल कबूल हो सकता है दोनों मुल्कों के लिए? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारी तरफ से तो हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप ने हर दौर में कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से अमन व अमान कायम हो सके, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के दरमियान हो या नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी कोशिशें की इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मामला हैं उसको ताकि वो हल किए जाएं। कश्मीर का मसला जो है वो थ्रू आउट बहुत ही अहमियत का हामिल रहा है और प्रायोरिटी उसी को दी गई है। इसी तरीके से बाकी मसले मसाइल भी, और फिर जनरल मुशर्रफ के दरमियान भी बहुत एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा पीस प्रोसेस शुरू किया गया दोनों ममालिक के दरमियान में। लेकिन क्लासा साहब ये मेरा अपना जो एक यकीन है कि अगर सिंसियरिटी इन्वॉल्व हो हिंदुस्तान की लीडरशिप की तरफ से तो ये तमाम के तमाम मसले हल हो सकते हैं। अब आप देखिए ना कि चाहिए क्या, चाहिए ये कि एक तो स्टेट्समैनशिप और करेज और बोल्ड डिसीजंस लेने की सलाहियत होनी चाहिए, बहुत ही अहम है दोनों ममालिक के दरमियान। अगर आपने अपना सारा का सारा टेन्योर 10-12 साल का वो पाकिस्तान बैशिंग में गुजारना है, बाकी खित्ते के बाकी ममालिक के खिलाफ एक एग्रेसिव एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी है और ये समझना है कि मैं चूंकि एक बहुत बड़ी ताकत हूँ जो जिसमें वो बुरी तरीके से एक्सपोज भी हुए हैं रिसेंटली, और मैं मसले मसाइल अपने ही टर्म पे हल करूंगा, तो फिर तो मसले मसाइल हल नहीं होंगे। फिर तो इसके लिए तो ये है कि हिंदुस्तान को अपने हाई हॉर्स से नीचे उतरना पड़ेगा और उनको ये सोचना होगा कि इस मौजूदा दौर में एक सॉवरेन इक्वालिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसकी उनको कदर करनी चाहिए। तो अगर वो एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करें, करेज और बोल्डनेस का मुजाहरा करें, सिर्फ खाली इक़्तिदार की खातिर वो पाकिस्तान के खिलाफ जो जिस किस्म के या बाकी खित्ते के ममालिक के खिलाफ इक़दाम उठाते हैं, तो उससे अगर वो रिफ्रेन करें और एक वहाँ पे माहौल, एक साजगार माहौल बनाए। आपने बड़ी अच्छी बातें की। एक और साइड ऑफ द स्टोरी भी है सर, आपको यकीनी तौर पर नॉलेज में होगी, जो इंडियन साइड कहती है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी साफ ज़ाहिर है। एक अपनी जब तक दोनों साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखेंगे तो कोई उसमें से कोई बात नहीं निकल सकेगी, क्योंकि दोनों के लिए मुश्किल मसला है ये। वो साइड ये कहती है जनाब कि हम तो आए थे यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के पास, मोदी साहब जो हैं वो अफगानिस्तान से जाते हुए रेवंड गए, जाती उमरा गए और उन्होंने न्यू बिगिनिंग की बात की और नवाज शरीफ साहब भी वेरी सपोर्टिव, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी गए थे। तो देन दे थिंक कि शायद वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी थी। मोदी साहब का पाकिस्तान आना वो समझते इट वाज बिग ब्रेक थ्रू, जो शायद यहाँ से उनके अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम्स वो शायद उसका रिस्पांस नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरा भी रिसेंटली हमने देखा है सर, जनरल बाजवा साहब ने भी 2019-20 में सहाफ़ियों को बुला के खुद कहा था, जो रिपोर्ट भी हुआ जिसको उन्होंने डिक्लाइन भी नहीं किया, कि तकरीबन उनकी जनरल फैज़ के जरिए यहाँ पे यू स्पॉन्सर्ड जो मुज़ाकरात हो रहे थे बैक डोर, तो बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी और वो पूरी फ़ौज भी और कमांडर भी सारे राज़ी हो गए थे। और मोदी साहब ने शायद 10 दिन के लिए पाकिस्तान आना था, चीज़ें अनाउंस होनी थी, कोई कश्मीर को कुछ दिनों के लिए फ्रीज करना था कुछ अरसे के लिए, फिर ट्रेड खोलनी थी, बला बला, वो आपके शायद नॉलेज में होगा। अकॉर्डिंग टू हिज क्लेम जनरल बाजवा साहब जो बाद में कि शायद उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी उन्होंने सपोर्ट नहीं दी थी, शाह कुरैशी साहब हूँ या इमरान खान साहब हूँ, वो शायद थोड़े से पीछे हट गए थे कि शायद हम पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया। सो वो इंडियन साइड बाजवा कहती हैं कि वी वर रेडी, पाकिस्तान आर्मी वाज रेडी, उस वक्त कमांडर जो थे, लेकिन जो पॉलिटिकल सपोर्ट वाज रिक्वायर्ड बाई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस शायद वो नहीं मिल सकी थी। सर आपका इस पे क्या व्यू होगा, क्योंकि आप अंदर की चीज़ें जानते हैं सर बेहतर मुझसे।
लासा साहब, आपने 2-3 बड़े ही अहम नुकात की निशानदेही की है। एक तो आपने बात की कि जी हिंदुस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू कि जी अपने तो मोदी साहब भी इधर तशरीफ लाए और बाकी जो वो भी आए, वाजपेयी साहब 1999 में, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ। लेकिन बात यह है कि हमें तमाम के तमाम जो वाक़यात होते हैं उसका बैकग्राउंड को भी समझने की ज़रूरत है। सर, एक तो ये है कि वाजपेयी साहब तो तशरीफ यहाँ पे लाए, लेकिन उससे पहले, और मैं चूंकि इन्वॉल्व रहा हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात में बहुत ही अरसे से, तो उनके विजिट, उनका जो 99 का जो विजिट था उससे पहले आपको मालूम है कि जो हमारी सियाचिन ग्लेशियर पे निगोशिएशन जो हो रही थी, उसके अंदर एक बहुत ही अहम जो नुक्ता जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि वो जो बेनज़ीर साहबा और राजीव गांधी के दरमियान जो एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको बाद में डिफेंस सेक्रेटरीज दोनों ममालिक के उन्होंने उसको फॉर्मलाइज किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी। लेकिन 1998 के अंदर वो जो हमारा सियाचिन में डेलीगेशन किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी वो तो पानी बहुत गुजर गया है अंडर द ब्रिज, तो वो वाला जो मुआहदा है उसकी अब हम कोई पासदारी नहीं करेंगे, और नई टर्म्स और ये कि ये जो हमने इलाका हमारे कब्जे में है और वो बस हमारे कब्जे में ही रहेगा। अब इस किस्म की हालात के अंदर जब उन्होंने एक तो कश्मीर पे कब्जा किया हुआ था और उसकी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, और दूसरा उन्होंने सियाचिन के ऊपर ये बात की और बड़ा उनका एक नेगेटिव, और उन्होंने कहा कि ये जितने भी मुज़ाकरात हुए सियाचिन के उसको हम फतेहपुश डालते हैं और एक नए मुज़ाकरात होंगे, तो उससे एक उनका बैड फेथ वो सामने आया। और उसके ऊपर जो हिंदुस्तान के बेशुमार लोगों ने, इंक्लूडिंग J.N. डिक्सिट ने भी इस बात को लिखा है कि हमने एक बहुत गलती की कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, उसको सियाचिन के ऊपर न इम्प्लीमेंट करके हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज किया। अब ये चीजें समझने की जरूरत है कि एक तरफ वो आप एक माहौल क्रिएट करें और दूसरा तरफ उनसे है प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट, उनसे आपने कहा कि वो लाहौर तशरीफ लाए थे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपने कोई विजिट अंडरटेक किया सिर्फ एक इंटरनेशनल जो एक कम्युनिटी को और एक मीडिया को जो है एक अपनी इम्पोर्टेंस शो करने के लिए और बगैर किसी उसके मकसद के, तो वो उसका फिर कोई फायदा नहीं होता। एक प्रॉपर प्रेपरेशन होती है जिसके तहत आगे आ जाता है। अगर आप देखें तो जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही एग्रेसिव उनका एक स्टांस रहा है। दूसरी बात ये, और मैं आप चीज बताऊं कि मामला हल हो सकते हैं अगर सिंसियरिटी हो। अगर सिर्फ आपने एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए, इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए कुछ इक़दाम लेने हैं एक मुल्क में, तो वो फिर बात आगे नहीं बढ़ती। दूसरी आपने ये कहा कि जी इस तरीके से कश्मीर को फ्रीज करने की बात की, तो मैं समझता हूं कि कश्मीर का मसला फ्रीज बिल्कुल ही नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ खाली वो एक पीस ऑफ लैंड तो है नहीं है जिसको आप पसे पुश रखते हैं। ये जो कश्मीरी अवाम जो है पिछले काफी अरसे से 1947 से, बल्कि उससे भी पहले से वो एक सफर कर रहे हैं। उनका एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है जो यूनाइटेड नेशंस ने रिकग्नाइज किया हुआ है। उनके ऊपर एक जुल्म सितम की एक, मैं समझता हूँ कि एक दास्तान लिखी गई हुई है, और उनकी जिस किस्म की कुर्बानियां उन्होंने दी हैं और जो देते जा रहे हैं, और अगर हम उनको कहेंगे जी हम आपके इशू को फ्रीज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक कश्मीरी कॉज के लिए एक बहुत बड़ी वो ज्यादती है। तो वो